صاد। اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے سواد بولتے ہیں۔ سواد کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ چکھنا۔ یہ کوئی چکھا جاتا ہے؟ صاد موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے بولتے ہوں گے سا نہیں ہوتا، سا۔ اور یہ نکلتا کیسے ہے؟ سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں اوپر والے، یہاں پر ہمیں زبان لگانی ہوتی ہے۔ دیکھیے کیسے لگے گی زبان، سا نکل گیا۔ السلام علیکم دوستو، چینل بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اللہ کی کتاب قرآن شریف کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکیں۔ دوستو، جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے سب سے پہلے اس کے بیس کو مضبوط کیا جاتا ہے، پختہ کیا جاتا ہے، تاکہ اوپر کی جو عمارت ہے وہ ٹھیک طریقے سے کھڑی ہو جائے۔ جب نیچے کا بیس مضبوط ہوگا تو اوپر کی بلڈنگ خود بخود کھڑی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا معاملہ ہے، جب تک اس کے بیسک حرفوں کی ہمیں ٹھیک طریقے سے جانکاری نہیں ہوگی ہم قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ ان کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جائے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، یہ جو میں نے ابھی دعا پڑھی ہے اور اعوذ اور بسم اللہ پڑھی ہے، یہ اچھی کیوں لگ رہی ہے سننے میں؟ یہ اس وجہ سے لگ رہی ہے جو قرآن کریم کے یہ جو بیسک حرف ہیں ان کو میں نے صحیح سے، ان کو میں نے ٹھیک طریقے سے ادا کیا ہے۔ دوستو، جب تک ہم ان حرفوں کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کریں گے تب تک ہمارا قرآن کریم مکمل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے قرآن کریم میں 100% غلطیاں ہی ہوں گی، کیونکہ ہمیں بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم قرآن کریم کو عورتوں کے پاس پڑھ لیتے ہیں، یا ہم مسجد میں جاتے ہیں جہاں پر 50 40 بچے ہوتے ہیں، تو امام لوگ جو ہوتے ہیں وہ دھیان نہیں دیتے ہیں بچہ کیسا پڑھ رہا ہے۔ ماں باپوں کو پتہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی پڑھائی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ دوستو، قرآن کریم کا اتنا علم پڑھنا ہم پر فرض ہے جس سے ہم قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ الف با، الف جو ہے بہت آرام کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں با آتا ہے، با کھینچ کر کے پڑھنا ہے اسے۔ تا، فا، فا۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے بولتے ہوں گے سا نہیں ہوتا، سا۔ اور یہ نکلتا کیسے ہے؟ سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں اوپر والے، یہاں پر ہمیں زبان لگانی ہوتی ہے۔ دیکھیے کیسے لگے گی زبان، سا نکل گیا۔ آگے دیکھیں، جیم، ہاں کو نکالنے کی اچھی طریقے سے پریکٹس کریں، کیونکہ یہ آسانی سے نہیں نکلتا ہے۔ کیا ہے 1000 بار اس کی پریکٹس کرنی پڑے تو کریں، تبھی قرآن کریم کو پڑھنے کا مزہ آئے گا، ورنہ ہرگز بھی نہیں آئے گا۔ میں نے بھی ان حرفوں کے اوپر کافی محنت کری ہے، تبھی مجھ پر ایسا پڑھنا آیا ہے۔ آگے دیکھیں، خا، دال، ذال، یہ باریک کر کے پڑھا جائے گا، زال نہیں۔ اسے بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ زال۔ اور یہ پڑھا کیسے جاتا ہے؟ ذال۔ جہاں سے سا نکلا ہے وہیں سے ہی یہ ذال نکلے گا۔ آگے دیکھیں، را، زا، سین، شین، شین۔ آگے سے ہونٹ گول ہو جائیں گے، گول، شین۔ آگے دیکھیں، صاد، ضاد، طا، ظا، ظا۔ دیکھیے یہ پڑھا ہم نے یہاں پر تا، اور یہ پڑھا ہم نے تو۔ یہ باریک ہو کے پڑھا جا رہا ہے اور یہ موٹا کر کے، تو۔ جب ہم اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، طل جو ہے اس میں یہ والا تو ہے، اور اگر ہم نے یہ والا پڑھ دیا صراطل تو غلط ہو گیا۔ یہی تو فرق ہے جو میں آپ کو سکھاؤں گا۔ آگے دیکھیں، وا،
मुंह भर के, वो, आइन, हलक से, आइन, गौइन, फा, कौफ, कौफ ये भी हलक से, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। देखिए अलिफ से लेकर के ये या तक के जो हर्फ हैं इनको बोलते हैं हम मुफरदात। मुफरदात का मतलब होता है अलग अलग होना, क्योंकि ये सारे हर्फ अलग अलग हैं, इनका इसलिए मुफरदात नाम रखा गया है। दोस्तों इन हर्फों में से 8 हर्फ ऐसे हैं जो मोटा करके अदा किए जाते हैं, बाकी हर्फ जो हैं वो बारीक करके पढ़े जाते हैं। तो मैं उन हर्फों पर निशान लगाऊंगा जो हर्फ मोटा करके पढ़े जाते हैं। आप एक कॉपी लें और उसमें लिख लें, इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। देखिए पहला हर्फ लेते हैं हम खा, खा। अब हम इसे पढ़ने लगे खा, गलत हो जाएगा। आगे है ये रॉ, क्या है रॉ, लोग क्या पढ़ते हैं रा, गलत। आगे देखिए सौद, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसे स्वाद बोलते हैं। स्वाद का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? चखना। ये कोई चखा जाता है, स्वाद मोटा करके पढ़ा जाएगा। आगे देखिए वोद, ये भी वोद, मैं दुआद नहीं कह रहा, वोद। इसका मखरज जो है वो बहुत ही मुश्किल है। मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह, जहाँ से ये निकलता है बड़ा मुश्किल से निकलता है। इस पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की, ये भी तभी निकला। ये निकलेगा कैसे? जबान का जो हमारा किनारा है दोनों तरफ का, उसको हमें गोल करना है और ऊपर की डालों में फंसाना है, तब निकलेगा ये वोद। मुंह को खोलना है, वोद। आगे देखें तो, ये भी मोटा पढ़ा जाता है। आगे ये देखिए वो, ये भी मोटा करके पढ़ा जाता है। आगे देखें इसके बाद में जो है गैन। अब हम इसे कहने लगे गैन। बाद लोग क्या पढ़ते हैं इसे एन गैन, क्या है ये? गलत है, जबकि ये है आइन और ये है गैन। तो गैन जो है वो मोटा करके पढ़ा जाता है। ये 8 हरूफ हुए जो मोटा करके पढ़े जाते हैं। इनके अलावा जितने भी हर्फ हैं उन्हें हमें बारीक करके पढ़ना पड़ता है। जब हम दोस्तों इन हर्फों को मोटा करके अदा करेंगे तो कुरान करीम हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को अगर मस्जिद में भेज रहे हैं, मोहल्ले में किसी औरत के पास भेज रहे हैं, अगर उन्होंने कवायद वाला कायदा नहीं पढ़ा है, वो कारी नहीं है, तो वो मुकम्मल आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप अपने बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके से बहुत आसानी के साथ मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों अब देखिए ये हर्फ लिखे हुए हैं यहाँ पर कुछ, ये बगैर तरतीब के लिखे हैं। ता, यहाँ पर क्या होगा हमारा इम्तहान। ऊपर जो हमने पढ़े हैं वो सीरियल वाइज लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखे हैं। ये इस वजह से लिख दिए हैं, यहाँ पर आप लोगों का इम्तहान है। आपने जो ऊपर पढ़ा है क्या आप उसको बगैर तरतीब के पढ़ सकते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। ता, तो, सा, सीन, शीन, सौद, हा, ख, क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, वाद, ज़ा, अलिफ, आइन, नून, बा, फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल, हमजा, या, काफ। दोस्तों जैसा मैं पढ़ रहा हूं, अगर आप इसी तरीके से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आपको बाजार जाना है और बाजार से ये वाला कायदा लेकर के आना है। इस कायदे का नाम है नूरानी कायदा। आप किसी भी बुक सेलर पे जाएं जो इस्लामिक किताब बेचता है, उससे कहें हमें नूरानी कायदा दे दो कवायद वाला, वो आपको ये वाला कायदा दे देगा। ये कायदा 5 या 10 रुपए का आता है। अगर आपके आसपास में बाजार में कोई दुकान नहीं होती है, कहीं कहीं पर ऐसा सिस्टम है कि दुकान नहीं होती दूर दूर तक, तो आप इसको अमेज़न से भी मंगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। जैसा कि दोस्तों अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है,
वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान करीम को ठहर ठहर कर साफ साफ पढ़ो। और हदीस में आया है ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, कुरान करीम को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो, खूबसूरत करो। तो दोस्तों खूबसूरत पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ये खूबसूरत आप कैसे पढ़ोगे? आपको इस कायदे के 26 सबक पढ़ने होंगे। अगर आपने 26 सबक पढ़ लिए, यकीनन दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने कुरान पढ़ा हुआ है तो आपका कुरान करीम ठीक हो जाएगा। अगर आप कुरान करीम नहीं पढ़े हुए हैं तो आप पर पढ़ना भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इम्तहान है, यहाँ लिख रहा है इम्तहान। देखिए अलिफ बा ता जीम दाल आइन फा। देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुरान करीम पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कुछ हरफ ऐसे होते हैं जब उनकी शक्ल आधी आती है तो कुछ और तरीके से लिखे होते हैं, पूरी शक्ल आती है तो कुछ और तरीका होता है उनका लिखने का। तो इसमें वो तरीका बताया जा रहा है। अगर आपने इस तरीके को समझ लिया तो आपको आगे चल के हरफों को पहचानने में बिल्कुल भी दुश्वारी नहीं होगी। तो इन हरफों की हम पहचान करते हैं। देखिए अलिफ, एक तो अलिफ का तरीका ये होगा और दो तरीके अलिफ के ये होते हैं लिखे होने के। जब आप कुरान करीम में पढ़ेंगे या कायदे या पारे में कहीं पर भी पढ़ेंगे तो अलिफ एक तरीका तो ये हो गया अलिफ का, और दो ये। सिर्फ 3 ही तरीकों से इस्तेमाल होगा, चौथे तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए बा है ये, बाकी 2 शक्ल ये हैं, और ता की 3 शक्ल ये हैं। इन तरीकों से भी ता लिखा आएगा कुरान करीम में। देखिए आगे जीम की दूसरी शक्ल ये आती है, दाल की दूसरी शक्ल ये होती है, आइन की 2 शक्लें ये और होती हैं, फा की 2 शक्ल ये और होती हैं। इस पर नुक्ता नहीं रखा, सॉरी। काफ की 2 शक्ल और होती है इस तरीके से। लाम की भी 2 होती हैं। मीम की भी 2 शक्ल होती हैं। नून की भी 2 शक्ल होती हैं। हा की भी 3 शक्ल होती हैं। हमजा की 2 शक्ल होती हैं। या की 2 शक्ल होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।